के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसान सोसाइटी के पदाधिकारियों का चुनाव। गुरु नानक पब्लिक स्कूल के 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मैराथन। कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने आरजीएचएस को अधिशेष धनराशि सरकार को हस्तांतरित करने को कहा। कर्नाटका भाजपा में गुटबाजी खत्म, पार्टी में पदों में फेरबदल की संभावना। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने हथियार नहीं सौंपे, डॉक्टर जी परमेश्वर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला कृषि समाज बीदर इकाई के जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष, जिला महासचिव और राज्य प्रतिनिधि पदाधिकारियों का चुनाव 2025-26 से 2029-30 तक 5 साल की अवधि के लिए चुनाव अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया और यह 10 जनवरी को संयुक्त कृषि निदेशक बीदर के कार्यालय में संयुक्त कृषि निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बीदर जिला कृषक समाज के पदाधिकारियों के चुनाव में जिला अध्यक्ष सिद्धरामैया एस स्वामी, जिला उपाध्यक्ष उमाकांत, जिला महासचिव संगमेश वाले, जिला कोषाध्यक्ष गोविंद रेड्डी और राज्य प्रतिनिधि विश्वनाथ माली पाटिल निर्विरोध चुने गए। आज विजेताओं का शहर में भव्य जुलूस निकाला गया जो शहर के विभिन्न मार्गों से बाजे गाजे के साथ गुजरा। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। समाजದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 7 ತಾಲೂಕಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರ್ತಾರೆ। ಟೋಟಲಿ 14 ಜನ ಇದ್ದರು। 14 ಜನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ವಿರೋಧವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜದ ಏನು ನಮ್ಮದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ನನ್ನಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿನ್ವಿರೋಧ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೊಂದು ಉಮಾಕಾಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। ಈಗ ನಾವು ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದೆ। ಈ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕಗಳು। ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಅವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ತೊಗೊಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರು ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಳಿಸಬೇಕು, ರೈತರು ಉಳಿಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆವು। ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪರೇಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತೆ। ಕಮಲ್ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಈಗ ನಾ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನಾನು ಚುನಾಯಿತ ಆಗಿದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ಗಳು ಸಾಬೂರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೈತರ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ। बीदर शहर का प्रसिद्ध स्कूल गुरु नानक पब्लिक स्कूल इस साल अपने 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसके जश्न के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। आज इस संबंध में गुरु नानक शिक्षण संस्थान की उपाध्यक्ष डॉक्टर रेशमा कौर ने मीडिया से बात करते हुए विस्तार से जानकारी दी। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। कर रहे हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल जो 1975 में स्टार्ट किया था वो 25 में 50 साल पूरे कर रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि 50 साल से हमारा स्कूल बीदर के आवाम की सेवा में लगा हुआ है। इस खुशी में इस सेलिब्रेशन को शुरू करने के लिए हम बीदर मैराथन से शुरू कर रहे हैं जो 12 जनवरी 25 को किया जाएगा। तो मुझे बेहद खुशी है आप सबको बताने में कि हमारे 6000 रजिस्ट्रेशंस हुए हैं और ये हाफ मैराथन है जो कि 21 किलोमीटर्स का है।
और इसके 21 किलोमीटर्स के साथ साथ 10 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स और 3 किलोमीटर्स रन में भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 21 किलोमीटर जो है ये सिर्फ प्रोफेशनल्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो रेगुलरली रन करते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमें खुशी होती बताने में कि हमारे 70 रजिस्ट्रेशन हुए हैं 21 किलोमीटर्स के लिए। तो ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, थोड़े से बिदर के भी लोग हैं और बाहर से काफ़ी लोग आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और 10 किलोमीटर्स का जो रन है उसमें 255 लोग रजिस्टर हुए हैं और सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स 3 और 5 किलोमीटर्स में है। तो 5 किलोमीटर्स में मोर देन 1500 और 3 किलोमीटर्स में 4500 लोगों से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है हम काफ़ी दिनों से इसमें लगे हुए हैं और हमारे 350 वॉलंटियर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले हुंचिएरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आरजीएचएस के पास उपलब्ध धन को अन्यत्र लगाने को एक कथित प्रयास में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अधिशेष धन को सरकारी मेडिकल कॉलेज में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्थानांतरित करें। चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सिद्धरामैया ने जोर देकर कहा कि आरजीएचएस के कुलपति वीसी धन राशि हस्तांतरित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। बैठक में मौजूद सूत्रों के अनुसार यह विचार मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने रखा था, जब कुलपति डॉक्टर एमके रमेश ने मुख्यमंत्री को यह बताने का प्रयास किया कि धनराशि हस्तांतरित नहीं की जा सकती तथा यह विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है तथा इसे कैसे एकत्रित किया जाता है, तो सिद्धरामैया ने यह पूछकर उन्हें चुप करा दिया। कौन श्रेष्ठ है, सरकार या विश्वविद्यालय? भाजपा हाईकमान ने राज्य इकाई के भीतर गुटबाजी को खत्म करने की रणनीति तैयार की है, क्योंकि उसने राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को पार्टी के पदाधिकारियों से फेरबदल करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता और एमएलसी बसवन गौड़ पाटिल यत्नाल खेमे के सदस्यों को भी नई सूची में शामिल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार महासचिव और उपाध्यक्ष के पद पर सहित पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव 14 जनवरी संक्रांति के दिन हो सकते हैं। विजेंद्र ने पहले ही इस कवायद की शुरुआत कर दी है और संभावितों से अपनी टीम में शामिल होने और सहयोग करने का आह्वान भी किया है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य उन्हें इस संबंध में सलाह दी है। हालांकि यह देखना होगा कि क्या इस फेरबदल से आंतरिक कलह खत्म हो पाती है, क्योंकि यत्नाल खेमा विजेंद्र को राज्य पार्टी प्रमुख के पद से हटाना चाहता है। उन्हें पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली सहित कुछ नेताओं का समर्थन प्राप्त है।
जो वरिष्ठता का दावा करते हुए स्वयं पार्टी के शीर्ष पद की दौड़ में थे। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि बुधवार को यहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले 6 नक्सलियों ने अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार नहीं सौंपे। डॉक्टर परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा कि पुलिस हथियारों का पता लगाने के लिए जांच करेगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। इन सरकारों ने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। 6 नक्सलियों में एक केरल और दूसरा तमिलनाडु का है। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया केरल और तमिलनाडु के अपने समकक्षों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 6 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ ही राज्य में 99% नक्सली गतिविधियां समाप्त हो गई हैं। अब ऐसी गतिविधियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री के सामने नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे राज्य में संदेश पहुंचने में मदद मिली। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी, दूसरे राजधानी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भाजपा के बागी नेता और पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार निश्चित रूप से अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध ज्योतिषी द्वारकानाथ ने लगभग 25 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि शिव कुमार भविष्य में मुख्यमंत्री होंगे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि द्वारकानाथ ने बातचीत के दौरान उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि शिव कुमार को जेल होगी और वह फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि शिव कुमार कारावास के बारे में उनकी पहली भविष्यवाणी पहले ही सच हो चुकी है। मुझे पूरा भरोसा है कि वह अगले सीएम होंगे। रेणुका स्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन और उनकी मित्र अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा सहित सभी आरोपी शुक्रवार को सत्र अदालत में पेश हुए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मामले में सभी 17 आरोपी जो जमानत पर बाहर हैं, प्रक्रिया के अनुसार वह 57वीं सीसीएच अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सभी आरोपियों की उपस्थिति पर गौर करते हुए अगली पेशी 25 फरवरी निर्धारित की तथा उन्हें उस दिन पुनः उपस्थित होने का निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट ने जमानत की शर्तों के तहत हर महीने पेश होने का आदेश दिया था और यह ऐसी ही एक पेशी है। बताया जा रहा है कि जमानत मिलने के बाद पहली बार सभी आरोपी एक ही समय पर कोर्ट में मौजूद थे। दर्शन, जो मीडिया और दर्शकों की मौजूदगी में अपनी कानूनी टीम के साथ पहुंचे, अदालत में पहुंचे, जबकि पवित्रा गौड़ा को पहले अपने वकील से बातचीत करने देखा गया। अन्य आरोपी भी अपने कानूनी प्रतिनिधियों के साथ आए थे। बेल्लारी जिले में कथित रूप से घटिया दवाओं के कारण हुई मातृ मृत्यु की पृष्ठभूमि में कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखकर केंद्रीय औषधि नियामक ढांचे में तत्काल सुधार का आग्रह किया। मंत्री ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की सीमाओं पर प्रकाश डाला तथा राज्य में औषधि निर्माण एवं वितरण की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उपाय प्रस्तावित किए। गुंडूराव ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान नियामक प्रणाली के तहत जिन दवा
कंपनियों को केवल उनके गृह राज्यों द्वारा लाइसेंस और निरीक्षण दिया गया, वे अपनी दवाएं देश भर में बेच सकती हैं, जिससे कर्नाटक जैसे राज्यों के पास अपने बाजारों में घटिया दवाओं के प्रवेश पर सीमित नियंत्रण रह जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में कर्नाटक में परीक्षण किए गए 894 दवा नमूनों में से 601 गुणवत्ता जांच में विफल रहे, जो राज्य के बाहर निर्मित थे। उन्होंने इन कमियों को दूर करने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव रखा और सुझाव दिया कि सभी केंद्रीय और राज्य प्रयोगशालाओं से दवा परीक्षण के लिए सुलभ बनाई जाए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा यौन उत्पीड़न के एक मामले में सुनवाई जारी रख सकती है, लेकिन अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तक निचली अदालत द्वारा आरोप तय नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत को यह निर्देश देने की मांग की थी कि सीआरपीसी की धारा 207 के तहत कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश करने के उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाए। इसी बीच अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक ने दलील दी कि केआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध से संबंधित सभी जानकारी याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध करा दी गई है। याचिकाकर्ता अब जो मांग रहा है वो पूरे फोन की सामग्री है, जो 18 जून 2024 की फॉरेंसिक रिपोर्ट का हिस्सा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फोन पर मौजूद तस्वीरें जरूरी है, उन तस्वीरों के आने का रास्ता भी जरूरी हो जाए। यह कई पीड़ितों से जुड़ा मामला है, जो अगर सब कुछ पेश कर दिया तो ट्रायल कोर्ट के सामने बेवजह उजागर हो जाएगा। उन्होंने अदालत को बताया कि इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार या पॉक्सो के ऐसे मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की एक विधि निर्धारित की। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसान सोसाइटी के पदाधिकारियों का चुनाव। गुरु नानक पब्लिक स्कूल के 50 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मैराथन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आरजीएचएस को अधिशेष धनराशि परमेश्वर। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।